staying with Kashmir as far as proving the naysayers wrong, of course, we'll come back to Pradeep and Yavar on more on that. This is the electorate of Jammu and Kashmir that has given a big thumbs up when it comes to the Union Territory's first assembly election since the abrogation of Article 370. Over 59% of voters that have come out in this impressive voter turnout that has been recorded in the first phase of polling alone. Along when it comes to the Election Commission of India, this has been the highest voter turnout in the past 7 Lok Sabha and assembly elections in Jammu and Kashmir. And these figures are likely to go up with the final figures that are yet to be received from the remote pockets or also from the postal ballots that are to be calculated. Long queues yesterday that were seen outside the polling booths, and unequivocal that message that came out against alienation and of course when it comes to the separatist forces. The first phase of polls that covered 24 seats across 7 districts including former terror hubs like Shopian, Anantnag, Pulwama. Once these areas where terrorists like Zakir Musa, Burhan Wani and Riaz Naku used to call the shots, the situation today has drastically and dramatically changed. BJP has called it a slap to the face on those parties with pro-separatist agenda. आज प्रधानमंत्री जी को दिलो मन से याद करते हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस इलेक्शन में जिस प्रकार से यहां से जीरो टॉलरेंस के साथ मिलिटेंसी को समाप्त किया, दूसरी चीजें की, आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के इस आगमन से बहुत असर पड़ेगा और लोग राष्ट्रवाद की लहर में आगे आएंगे, टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़ेंगे और बच्चे आज जिन माँ बाप के स्कूल जा रहे हैं रेगुलरली तो उन पर भी असर करेगा। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का दौरा ये बड़ा कामयाब दौरा रहेगा। So 3 phases, first phase is over, impressive voter turnout recorded. Now in the text, 2 phases of polling that will be held first on 25th of September and then on the 1st of October respectively. And to lead the BJP's campaign is the star campaigner Prime Minister Narendra Modi himself, who today will be in Srinagar for a mega rally that is being organized at the Sher-e-Kashmir Stadium, which is already all decked up to welcome Prime Minister Narendra Modi with unprecedented security that has also been put in place. And of course, when it comes to the preparations on ground, we'll be also taking a look at how people are ready to welcome Prime Minister Narendra Modi. Let's in the meantime also talk about when it comes to the voter turnout that has been recorded. Of course, this has been a record one, impressive one, and the EC says this is the highest voting that in the last 7 elections that has been recorded. अमित जो हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं क्योंकि हमने तस्वीरें पहले आते हुए देखी थी जिस तरीके से जो सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है और जहां तक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो हर दफा इस साल में तो हमने देखा है कि कई बार वो जम्मू कश्मीर गए हैं, कई बार वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया है खुले दिल से। अमित नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इस बार भी, और सबसे बड़ी बात की प्रधानमंत्री मोदी यहां पर अगर 73 हटने के बाद दूसरी बार आएंगे, इससे पहले श्रीनगर में आए थे लेकिन वो विकास योजनाओं का ऐलान करने आए थे, लेकिन इस बार वो वोट मांगने आएंगे। और सबसे बड़ी बात की तमाम लोग यहां पर जो लोग हैं, आप देखिए लंबी लाइन लगी हुई है, एक तरह से लोगों में एक हुजूम है वहां पर जाकर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। और इस पूरे रास्ते में जो शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम है उस तरफ सब लोग जा रहे हैं। 12 बजे के लगभग प्रधानमंत्री आएंगे और यहां पर देखिए यहां से इस गेट से जो प्रधानमंत्री की एंट्री होगी, तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। और यहां पर जब लोगों से हमारी बात भी हो रही थी तो उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी पर एक भरोसा, जो जमहूरियत को लेकर जो भरोसा बना है, क्योंकि पिछले 10 साल और खास करके 73 हटने के बाद यहां पर जो शांति आई है। कल रात को मैं डल लेक के आसपास करीब रात को 12:30-1 बजे घूम रहा था तो उस समय भी लोग मुझे कुछ नजर आए। ये वो लोगों का एक विश्वास बना है कि कुछ मसले अपने हैं लेकिन कश्मीर की जो सबसे बड़ी मसला था शांति का, सुकून का, वो यहां पर दिखा है। जो कश्मीरियत की बात करते हैं लोग या जमहूरियत की बात करते हैं, वो दिखा है। पहले फेज के दौरान जब मैं लोगों से मिला तो लोगों में को लगा कि गोले बंदूक का समय खत्म हो गया, उससे अपनी बातें नहीं हो पा रही है। जो डेवलपमेंट है, बच्चों का भविष्य है, उसके लिए ईवीएम मशीन का बटन दबाना पड़ेगा, चुनाव में शामिल होना पड़ेगा। जमहूरियत ही वो रास्ता है जो कि बच्चों का भविष्य भी तय अच्छा करेगा और सब कुछ करेगा। तो देखिए धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हर किसी को लगता है कि जल्दी से जल्दी वो जाएं और वहां पर सीटें ले, नरेंद्र मोदी को सुने और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। लेकिन जिस तरह से कल मैं पुलवामा में था, पांपोर में था, उस तरफ अनंतनाग तरफ गया था, हर जगह में मुझे एक जो लोगों का विश्वास दिखा है। इससे पहले अक्सर 2%, 5% इस तरह से वोटिंग हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से
लोकसभा चुनाव के दौरान भी लोग घर से बाहर निकले और विधानसभा 10 साल के बाद विधानसभा चुनने का मौका पड़ रहा है लोगों को, लेकिन उसमें जिस तरह से बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, उनको लगता है कि हम अपनी सरकार चुनेंगे, अपने नुमाइंदे चुनेंगे, तभी वो जो नुमाइंदे होंगे वो हमारी आवाम के लिए काम करेंगे। तो ये भरोसा, ये विश्वास जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों को एक जगाया है, इसके उसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं ताकि यहां पे सरकार बने। और एक भरोसा भी है क्योंकि अमित शाह ने जब फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा था कि जो फुल स्टेट का जो दर्जा है वो मिलेगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, एक वक्त रहते मिलेगा जब समय होगा। अब देखिए लोग दौड़ कर जा रहे हैं यहां पर। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उत्साह ये है कि वो दौड़ते हुए लोग जा रहे हैं स्टेडियम की तरह, ताकि पहुंचने में देरी ना हो जाए। करीब यहां से 800 मीटर की दूरी पर स्टेडियम होगा का वो द्वार है जहां से आम लोगों को जाने को मिल रहा है। तो लोगों का भरोसा और नरेंद्र मोदी को सुनने की जो ललक है, आप उसको देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, को देखने के लिए। और उनको लगता है कि कश्मीर में जिस तरह से एक शांति का माहौल बना है, उसको और बेहतर करने के लिए नरेंद्र मोदी उनके हितों की बात भी करेंगे, उनके लिए सोचेंगे, उनके लिए कुछ बातों को, कुछ वायदे करेंगे जो कि आगे भविष्य में फुलफिल किया जाएगा। चलिए प्रधान